Okay, so good morning, Mariam. Good morning, Jyoti. Good morning, Cinderella, Shivani, and Alka. Looks like boys are not interested in study. It's the girls who want to study. So I don't see many boys like Charles used to be a regular one. Boys are interested in recording, recorded sessions. That doesn't give you learning because the way we interact over here, we can ask questions, and that also goes longer in the memory. And video is not it's not a web series or not a audio visual content which will attract your attention, goes into your memory. No, so maybe over a period of time, because our long video they may get bored also. But I have seen that in this course, majority are girls. So let's start. Okay, so we are. एकदम फर्स्ट क्लास पप्पा ठीक छ टेढो भयो मुसाको लागि टेढो भयो तेरो दिमाग छैन घर जब गर्न पर्दैन ठीक हुन्छ त्यो दुख्या भयो मजा गरेको अटेन्सनमा आयो बुढी I moved to a, or at least try to move to a better place because there was constant network issue. Yeah. So coming back to our discussion, what we have been discussing before, like industrial psychology is all about employee life cycle. We discuss about how we attract talent. Talent means anybody who is applying for a job. How we ensure that we have done our work properly. कि हमने उनका जॉब डिस्क्रिप्शंस पूरा अच्छे से बना लिया है. जॉब डिस्क्रिप्शंस लाइक अगेन रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड. जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, व्हाट इट कंटेन्स इज what the person need to perform at the job, a detailed job description. Ideally it should not be longer than one page. कुछ होता है कहीं कहीं पे 2 पेज 3 पेज भी हो जाता है. Then we do a job analysis. Job analysis is like
how they need to do the job, what does it take to do the job, job specification, उस जॉब को करने के लिए जो भी स्किल चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, that is job specification. And job evolution more from the perspective of the salary benchmarking or compensation and benefit benchmarking. In HR we don't call it salary benchmarking sort of things, we call more a comp and benefit, like what compensation we are paying and what benefits other than the salary, that's benchmarking, or to determine. So we discussed, studied about all these aspects. And so that's how it starts. So HR life cycle, you attracted talent. Before attracting talent, you decided job descriptions, you did job evaluation, everything you did, and you posted advertisement, candidates applied. So now the chapter 6 or unit 6 of the book, if you see, is not a rocket science. Why it is not a rocket science? It talks about like, okay, आप जॉब में किसी को अगर बुलाना है, आपको चाहिए तो आप कैसे करोगे? How will you do that? It's all about that. I didn't say in university this kind of question is asked, the very basic kind of thing, but for the sake of study, we will complete that. So um, yeah. So you attracted talent. After attracting talent, you do not covered in the book, but what we do is essentially induction. So induction is a kind of training. You tell the person जो भी job पे आया हुआ है उसको कि like what is our organizations, what is our different policies, what is our values, what does it mean by working with different department. So few organization have just a formality, joining formalities कि बुलाया आधे घंटे में खत्म कर दिया sort of things, but a good organizations, they have a very long kind of induction. It can start with as small as 2 to 3 days to even a week. So like in pharma companies, so this is essentially part of training. So in pharma companies, basically what happens, आप लोगों ने कभी वो एमआर को देखा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, Yes. अलका, मरियम, ज्योति, आप. Yes. सो एमआर, जब किसी भी एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को फील्ड पे भेजने से पहले कि डॉक्टर के पास जाके वहां पे जाके बताए कि सर ये फॉर्मुलेशंस का, ये स्पेसिफिकेशन का मेरा ये प्रोडक्ट है, दे अंडरगो अराउंड 21 days to 1 month का ट्रेनिंग. जो उनका एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, दे कंप्लीटली सीट द देयर कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज. मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, हाउ डू वी डू द फॉर्मुलेशन, हाउ डू वी डू द R&D, फ्रॉम वेयर प्रोडक्ट्स कम, बिकॉज व्हेन दे नो अबाउट अ कंपनी वेल, then they can sell it better. So that's the whole idea. That's also a training. So again, HR life cycle, induction, training. So here, essentially in these two chapters, we are studying about only recruitment and selection and training and development. मैंने उसका एक glimpse उसमें दे दिया है. तो repeat again from learning perspective, those who are not aware what happens in HR. So this topic, this subject, industrial and organizational psychology, will give you a glimpse like what exactly happens. So even those who want to make career in HR, planning for MBA, well, it's a good kind of book, good kind of learning. Those who already knows or they have seen experience, for them nothing like that, they can start writing on the basis of their experience. They need not to be depend on the book. So let's start. The topic 6, I will not focus more on the things which is not required. So 6.1 is recruiting applicants. So what written in this book as well as what happens really in real world is ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, ऐसे नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है, बट प्रॉब्लम है राइट टैलेंट को ढूंढना. दैट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन माय करियर ऑफ 17-18 years of HR. इट इट नेवर हैपेंड दैट कि मेरे पास कोई एक कैंडिडेट आया हो और वही कैंडिडेट उस जॉब के लिए सुटेबल हुआ हो. नॉट पॉसिबल. इन 2007 or 8, I was recruiting in the sales for a well-known pharma company. I needed just a graduate because MBA could not do that work because the field work and salary was also
comparatively low from the MBA expectations point of view. For 10 job applications, I received around 700, 750 applicants. That's to MBA. That's a problem because getting a right talent is one of the biggest challenge. Second biggest challenge is retaining them. How will retain them? Third biggest challenge is performance. One of the my uh, हम जो competency की बात करते हैं, that's mostly inborn, genetical होता है. Through all this study, through competency mapping, through uh, competency assessment, through training, we can we can improve the performance by 5% only. The rest all are inherited, and somewhere I have to agree on that also. So that's the scenario. So this chapter 6 essentially talks about that. So recruiting applicants, how do we how so uh, exam point of view, I don't see this is coming, but yeah, it has not come in the past because it was annual pattern, the whole book was mixed, but this time the book is divided into two, so probably there are chances that question may be asked. That's why we are discussing on that part. So recruiting applicants is one of the most important tasks. How do we recruit uh, anyone? So don't look at the book. I'll suggest each one of you without looking at book, without looking at the text what you have read. So maybe Mariam, Alka, Jyoti, Shivani, or Gehna, Cinderella. So suppose you are HR of any company and you want to attract the talent, you want to hire people. What different methodologies will you use? Can anyone? Am I audible? Yes, sir. Can I? Yeah, you may start, but since you are from HR background, you prefer other people who can just put a thought into that. Maybe Shivani, Alka, Gehna, Mariam, or Cinderella. Yes, we can do for the attracted candidates. Na? There will be the company portal as well. We can advertising on the company portal as well, or we can do walk-ins for the same positions. Or else nowadays they are we are having some job portals as well. फॉर एग्जाम्पल नौकरी है, अदर देन बहुत सारे पोर्टल्स है वहां पे, या फिर मेन पोर्टल है जो लिंक्डइन पे बहुत सारे हमें जॉब प्रोफाइल्स मिलते हैं. वी कैन यूज दैट इन कंपनी यूजेस दैट मोर मच फॉर द अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स. And we can do our JDs properly. So at the main thing is JD. We can make our JD properly, job description properly. So candidate much attract on the job JDs only. Yeah. It. Even without looking at book, you know many things. So JD is a separate part because the question, if question asked like what are the different source of recruitment or different source of attracting talent, you know very well. You said company career section in a company portal. There people can visit, upload their resume, apply. That is for sure. Second, you talked about job portals like Naukri.com. There are not many, but yeah, Naukri, Shine, these two are non-time job is like not so effective, not good. Yeah, even the examiner who is evaluating the paper will never know like what is time jobs and those sort of things. But yeah, so already those things. So the same thing has been written in the textbook also. This books provided to us. So in books they have mentioned somewhere school recruitment. So this is typically a copy paste. Those who has applied mind while writing the book, it's not written. I see. Sorry, I'm criticizing the author or the professor who has written the book. They have just copy paste. So school recruitment, school sourcing doesn't happen in India or in the world. Now this is called campus placement, where I go to a campus,
I provide my job description, salary band, everything before, and on the basis of that, I interview there. Give them a offer, and then hire talent. So campus placement is there, job fair is there. Accurately, this can be used. Uh, yeah, and now in terms of IT hiring or in terms of the tech hiring, in terms of creative hiring, so there are few portals. There are few portals where they're given a small work or a task which they perform on the basis of the performance. So that's another example of job sample. See, the world has evolved. Job sample was written in the book. You maybe in existence 30 years back, 40 years back. It is still practiced in manufacturing kind of setup, the old kind of setup. But in modern setup, it's a gig work. So gig work is like it's not a full-time work. You assign a task to them, and on the basis of that, on the basis of that, uh, people are given offer. So for fresher, like firstnaukri.com is there. For fresher, internsala is there, where interns are provided, internship opportunity provided, and people can write. So essentially same thing, whatever written in the book, but you can modify answer. You know very well how what to write. So even if you don't remember book point, that's fine. Yeah. So it talks about the same thing. So see, several methods can be used to recruit advertising. Uh, Newspaper advertising doesn't work much in today's time. In old time, it was there. School recruiters is not a school recruiters; it's a campus placement. Yeah. Employee referral, yes. Employee referral is one of the most effective and uh, effective way of hiring people. In my organization, 70%, 75% of the applications that comes through the referral, because we provide referral amount to the employee. They are also motivated to uh, call other people to join the company. So 75% comes to the referral, and it's cost effective also. What not written in the book is the placement consultants. Yeah, when it comes to junior roles, placement consultant. When it comes to the senior role, they are called uh, uh, executive placements. So executive placements are uh, very uh, like very costly sort of thing. So if you go to uh, any big name, maybe Russell Reynolds or those sort of things, so they will hire only for the executive level. Executive level, when I say executive, is the director level. So their charge will be very high. So they may say that 40-50 lakhs upfront you have to pay before even starting of the position. Yeah, so executives search firm. So all these things you can include in your answer if asked. But I don't think this is going to be more important kind of thing. Yeah. Except for low level positions, many organizations rely on their own company website, Chapman and Webster. So first of all, I do not know who is this researcher is, but my experience is company website doesn't give you enough response. I have been doing in this company website sort of things since 2008. Not really it works. It doesn't give so much talent. In my current organization, I think for the company website in last 2 years, hardly two people have applied. It says low level positions. Low level position is an entry level position. So for IT companies, it may still work, but it still doesn't work that way. Yeah. Selecting employees, very simple. Now we have got applications. After getting applications, we need to select the employee. We need to screen the resume. We shortlist on the basis of whatever job descriptions or job specifications we have provided, and on the basis of that, we start doing interview. The question is, how do organizations select employees? What they do? Yeah. So they screen their applications. After that, it is time to validate whatever they have mentioned in the resume. Yeah. So there are multiple problem can be there, like during interview there can be bias, there can be not able to detect inaccurate information provided. So like one of the surveys says that almost 35-40% of the applicants they canvas their resume. The canvas resume means they try to write something which they have not done. At least 15-20% people lie about their qualification. So uh, my own research says that there are a lot of people like who could not complete their education. They pay money and then they try to buy
from most of the private universities. This thing is happening. Yeah. So etc. So before hiring anyone, what we need to do is conducting a validation study. Yeah. So validation in terms of whether we really need this job or not, why this job is required. Like I think Shivani said, the job descriptions has to be accurate. So that's why we need to do job analysis. Why job analysis? Because we need to see whether this job is required or not. What 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 is the job profile of this thing? There was once circulation. Somebody from Paytm or some other organization, I don't remember exactly. What the recruiter did that she copied paste job description from some other companies and pasted on LinkedIn the job descriptions, and people started making fun of that. How HR can do such a mistake? How HR can just copy paste, even don't bother to change the name? So have you done your job analysis? Without doing job analysis, we will never be able to hire a right candidate, and that we do a lot. So like in my current organizations, we wanted to hire a marketing and communication manager. But a marketing and communication manager for the outside world will be a very different kind of thing. उसका काम का नेचर एकदम अलग होगा. यहाँ पर क्या है, उसमें उसको मार्केटिंग भी करना है, कम्युनिकेशन भी करना है, पीआर भी करना है, उसको सॉर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च भी करना है. सो जॉब दिस completely अलग था. And when you do not do your job evaluation properly, the problem is you just search candidate, पसंद नहीं आया, नहीं जमा, क्योंकि ये जो हमें चाहिए इसके अंदर नहीं है. जॉब एनालिसिस बेसिकली फर्स्ट थिंग इज लाइक हमें क्या चाहिए, उस जॉब को करने के लिए क्या होगा. सो दैट इज a kind of job analysis. Let me try to show you something. So the first step in job validation is doing job analysis. When you do job analysis and you do job specification, uh, that's actually help you. Okay, why we need this job, why it is required, and sort of. So this is how we have done a job descriptions. We wanted to hire a chief executive officer. Since we could not decide name because the person has not been hired, reports to, because we were still discussing like whom he or she will report. So that's why we didn't do it. So see here we have clearly mentioned responsibility level, functions, what he will do, what is expected out of this role, the complete job descriptions like this thing, what will be the key performance indicator, then what is overall expected, a detailed kind of thing, what kind of competency required in the person, what qualification, what work experience. Yeah. So that's how it is done. So this is a kind of job analysis.
sorry, my mic was on mute. So that what I shown to you is a kind of job analysis conducted that has a KRA, that has a KPI, and on the once we have done the job analysis, the second we need to set the parameter, key performance indicator. Key performance indicator is like how do we evaluate that this person has performed in the job. That is the key performance indicator. So Maria, what do you do? Mariam, sorry. Mariam, what do you do? Hello. Okay, if not Mariam, Alka. Alka, what do you do? Can you please brief me about you? So repeat the question. What do you do? So apart from study, what do you do? Mariam said nothing is studying. I take tuitions. Okay. So basically you're a teacher, right? Yeah. So if I have to suppose tomorrow if you apply for an interview, you leave your personal tuitions and you want to join a coaching classes because you feel that attracting student and then asking them for the fees every time is difficult. So rather let me be part of any institute and they will do the rest of the task. Yeah. So when you apply for a job, you are doing your job well. What can be few of the indicators? So your voice is breaking. Repeat it again. So I'm asking. So if you decide tomorrow to leave the tuition and join any other coaching institute, at that time when you apply for a job, and if they have to evaluate whether you are fit for them or not, what will be the indicator? Indicator which shows that you have performed your job well. Firstly, they will check my JD, and main part they will see my experience and my qualifications. How will they validate this? Because this also need to be validated, no? I have to mention that in my JD. How, No. I don't know how Okay, they will evaluate. आई एम करेक्टिंग हियर. तो वो रिज्यूमे में लिखा है, अब उसको वैलिडेट करना है कि जो लिखा है वो सही है या नहीं, जो लिखा है वो मेरे जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है. फॉर एग्जांपल वो सबसे पहले चेक करेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी इंटरव्यू लेगा. फर्स्ट थिंग इज वेदर यू आर पंक्चुअल फॉर टाइम और नॉट. ही में आस्क क्वेश्चंस लाइक प्रोबिंग क्वेश्चंस लाइक ओके कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके ट्यूशंस आपके डिले हुए, तब आपने क्या किया, मोर कॉम्पिटेंसी काइंड ऑफ थिंग. दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ओके आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते थे. ने बताया कि ओके मैं 8 9 10 7 6 जो भी आपने ग्रेड बताया. ओके तो आप मुझे बताइए कि 10th में आप क्या क्या पढ़ाते थे. आपने बोला कि चलो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, या आपने बोला कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी. बोला ओके तो आप ये बताइए कि इकोनॉमिक्स में बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या पूछे गए. सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड दिस गिव द वैलिडेशन. सी जॉब डिस्क्रिप्शंस वो देगा, आप नहीं देंगे, आप आपका रेज्यूमे देंगे. जॉब एनालिसिस वो करेगा क्योंकि हायरिंग उसको करना है, मुझे हायरिंग करना है, मैं जॉब एनालिसिस करूंगा कैंडिडेट को बुलाने से पहले कि ओके मेरे जॉब में कि मेरे कितने मेरे क्लास मेरे सेंटर से कितने मेरे स्टूडेंट्स आने के एक्सपेक्टेशन है, मुझे कितने टीचर्स की जरूरत है, कौन से टीचर को कहाँ पे रखना है, कौन से टॉपिक पढ़ाना है. हो सकता है फिजिक्स के लिए 3 टीचर हो, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा. सो दे स्पेसिफाई द जॉब जिसमें ओके मेरे पास फिजिक्स में नॉट फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. इकोनॉमिक्स में मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ऑलरेडी कोई है, माइक्रो के लिए अलग है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कोई नहीं है. तो ये जॉब एनालिसिस में से सामने से आया क्योंकि दोनों के पास टाइम ही नहीं है. तो मुझे जो चाहिए ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा सके. या साइकोलॉजी में मेरे पास कॉग्निटिव पढ़ाने के लिए लोग हैं, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए लोग हैं, लेकिन मेरे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए लोग नहीं है. ये 2 जन है लेकिन ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. तो मुझे जो भी हायर करना होगा मुझे चेक करना होगा कि उसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है. सो दैट्स हाउ you do job analysis and you do the job validation. Okay. Sorry, validation during the interview. तो validation में probing questions पूछे जाते हैं जिससे clarity मिले. So then we decide the predictors, we validate the predictors. Okay,
सो देन डू द कंकरेंट वैलिडेशन स्टडी। फ्रैंकली स्पीकिंग एचआर वर्ल्ड में इतना सब कुछ कोई करता नहीं है, ये ओल्ड टाइम में होता रहेगा, बट इसको हमने एक नया वे से हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि केपीआई जो है कैंडिडेट के ज्वाइन होने के बाद में होता है। इंटरव्यू लेने की जो टेक्निक्स है उसमें मैक्सिमम अच्छी कंपनीज जो भी है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू पूछते हैं, उसका मेथड अलग होता है। I can show you that thing also. So then do the predictive validity study. So in this type of validity test, the predictors are measured before the criteria. A sample of job applicants is assessed on the predictor. ठीक है, मैंने जॉब एप्लीकेंट का सैंपल ले लिया और देखा कि प्रेडिक्टर में कहाँ पे मैच करता है। ओके, तो सही से उसको रिस्पॉन्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसमें हाई प्रेडिक्टर होगा, लो प्रेडिक्टर होगा, प्रेडिक्टर मुझे दिखाता है दैट थिंग। देन मैं उसको क्रॉस वैलिडेट करूंगा। तो क्रॉस वैलिडेट इज फाइनल स्टेज। सो वी डिसाइड बिटवीन we discuss about the result, and we are sure that whether there is any correlation between criteria and the predictor. So then we do a validity generalization कि ठीक है ये चीज होगा तो सही होगा kind of thing. So this is how the predictor information we use for the selection. I'll not focus much on that. यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ओके, वैलिडेशन अगर स्टडी अगर पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट पीपल डू, तो कंपनीज इन दैट केस दे बाय एग्जिस्टिंग टूल्स अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स को हायरिंग करना है तो सेल्स एप्टीट्यूड टेस्ट हायर करेंगे। अगर पर्सनालिटी टेस्ट करना है तो उसके लिए 15FQ+ होगा, या फिर डिस्क आजकल को जल्दी यूज करता नहीं है, फिर वो भी काइंड ऑफ टूल्स है। अलग अलग टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं होता, दे बाय एंड दे डू इट। So getting applicants to accept and keep jobs offered, I'll not talk much more on that. So what happens, आपने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, चलो आपने क्राइटेरियन कर लिया, वैलिडिटी कर लिया, इंडिकेटर कर लिया, सब कुछ कर लिया, जॉब एनालिसिस कर लिया, जॉब पोस्टिंग कर लिए, एप्लीकेशंस आ गए, आपने इंटरव्यूज भी लिए, उनको वैलिडेट भी किया, फाइनल शॉर्टलिस्ट भी किया, आपने उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले लिए, सब हो गया। नाउ यू हैव ऑफर्ड द कैंडिडेट। एट दिस टाइम द वर्ल्ड हैज चेंज। 90s में कोई लोगों की प्रायोरिटी थी जॉब सिक्योरिटी, किसी ने एक बार जॉब ज्वाइन कर लिया, उस जॉब को लाइफ टाइम छोड़ता नहीं था। आज के टाइम में पीपल सी कि वो जॉब उनके लिए रिलेवेंस कितना है, उनको करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, somebody offered me a job some 6 months back. I said no. The simple reason is that I didn't like the person's personality. I didn't like I had a kind of adverse feeling about it. Feeling, because I have not seen that, but adverse feeling about the culture. I said no. So the most challenging stuff is like offering people after first the challenge is hiring right talent. सही एक जॉब के लिए 400 लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन सुटेबल हार्डली उसमें से 4-5 होंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्किल इतने मार्केट में कम अवेलेबल होते हैं स्किल लोग, कि हमें उसमें उन लोगों को हायर करना इक्वली डिफिकल्ट होता है। Just to share you example, you can write this in exam also if asked, like difficulty in hiring. कोविड के टाइम जैसे कोविड स्टार्ट हुआ मार्च 2020 में, we were like clueless, अब क्या होगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, आगे काम होगा नहीं होगा, we were clueless. हमें भी नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, क्या पूरा वर्ल्ड शट हो गया, अब किस तरह से होगा, लोगों को रखना है नहीं रखना है, कैसे करना है, काइंड ऑफ थिंग। थिंग्स चेंज। आई एम नॉट फ्रॉम IT वर्ल्ड, बट IT वर्ल्ड में ऐसा हो गया कि जहाँ पे फ्रेशर्स को 2 लाख 3 लाख की सैलरी मिलती थी, उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पूरा वर्ल्ड वर्चुअल हो गया, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप होने लगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रेशर भी बढ़ने लगा। इवन फ्रेशर्स जिनको कुछ आता नहीं था, बेसिक कोडिंग भी ढंग से आता नहीं था, स्टार्टेड डिमांडिंग 8 लाख 10 लाख, क्योंकि हर एक को चाहिए। ऑल ड्रिवन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। एंड वहां पे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको टिका के रखना इतना डिफिकल्ट हो रहा था। डाउन द लाइन आफ्टर 2 years आज कंडीशन ये है कि जिन कंपनियों ने जॉब ऑफर दिए हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन कि मुझे इतना बिजनेस आएगा, इतने लोग हायर करनी पड़ेगी, या तो उन्होंने ऑफर विड्रॉ कर लिए, या तो उन लोगों ने सैलरी सीधा कम कर दी है, 50% तक रिड्यूस कर दिया, बोला सॉरी
आपको ज्वाइन करना है तो आपको इस सैलरी में ज्वाइन करना होगा। सो टैलेंट का क्रंच है, आपने ऑफर दिया, उसके बाद वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए और वो ज्वाइन करना चाहिए। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स ऑल अबाउट गेटिंग एप्लीकेंट्स टू एक्सेप्ट एंड कीप जॉब्स ऑफर्ड, क्योंकि हर एक का रीड अलग अलग होता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक है, इसका एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट खाली मैं इसको एक टच करूंगा, द रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। इसमें क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेंट्स को जॉब ज्वाइन करने से पहले जॉब क्या होगा, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, इस जॉब का नेचर क्या है, उसमें कितना टाइम करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें आपको वर्किंग आवर स्ट्रेच भी करना पड़े, हो सकता है कि आपको उसमें ट्रैवलिंग भी करना पड़े। सो यू गिव अ आइडिया, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू इज गिविंग आइडिया एन एप्लीकेंट लाइक व्हाट द जॉब लुक्स लाइक, and on the basis of that the person decides. जैसे अभी recently I wanted to hire somebody at a regional head level. Yeah, so approach the candidate, my team approach the candidate. Candidate asked first question, what is the role all about? If it is the same role whatever I'm doing now, I'm not interested. Tell me only if it is something interesting. And then my team members, she provided all the information, required information about the job. So that is called the realistic job preview. You give candidate, before even he applies, a brief about like what is the job all about, and on the basis of that the candidate decides कि join करना है नहीं करना है. If you have already offered a candidate at the time also, at offer stage वो certain सवाल पूछेगा, आपका वर्क आवर्स क्या है, आपका परफॉर्मेंस बोनस क्या है, आपका आरएनआर क्या है, आपकी पॉलिसीज, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन क्या है, आपकी पॉलिसीज क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही और शी डिसाइड्स कि करना है या नहीं करना है. ओके, सो गॉट क्लैरिटी ऑन रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू? हेलो, Yes, sir. Sir. ओके. सो व्हेन यू से रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, कि ज्वाइन करने से पहले लोगों को बता दिया जाता है कि भाई ये जॉब ऐसा होगा, आपको करना है या नहीं करना है. सो आई ऑलवेज व्हाट आई डू बिफोर हायरिंग एनीवन, I give them the complete clarity about the job role. Even my team. So my team at a factory level, if they want to hire somebody, they clear them. Look, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा वर्किंग आवर्स है, ये हमारे फूड्स को लेके रूल है, आपको मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं, बिकॉज ज्वेलरी कंपनी, सो उसमें आपको अलाउड नहीं होगा, आपको लॉकर में रखना पड़ेगा. आपको ओके है, आप तैयार हो करने के लिए, जब वो हाँ बोलता है देन ओनली वी प्रोसीड अहेड, ऑफर देने से पहले. So this saves their time and also our time. So it's always said hire people, one, सबसे पहले तो उनके कल्चरल फिटनेस के लिए, and second for their competency. These two things are only required. So I'll just move ahead. So scientific selection. So always remember when we use the word scientific, scientific means what? उसका एक सिस्टम होना चाहिए. Remember, word scientific means it should have a system. It should be systematic. कि आपने ऑलरेडी प्रोसेस डिफाइन किया, आप उसी को फॉलो करते हैं, आप कुछ भी उसमें रैंडमली करके नहीं आते. सेकेंड, this can be experimented, there will be data, you can test hypothesis, you can collect data, you can analyze data. So this process is called scientific. Okay, so when you say scientific selection, so any scientific selection, because it involves process, it's not easy, it takes a lot of time. Yeah, so साइंटिफिक वेज लाइक कुछ कंपनी का होगा कि आप किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले एक जॉब एप्लीकेशन ब्लैंक हमने पहले देखा, हमने देखा कि वो कैंडिडेट्स बायोग्राफी वाला जो देखा, तो देयर वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन वी कैन डिटरमाइन कि ओके ये सूटेबल होगा या नहीं होगा. फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई एम हेडिंग एचआर, सो वहां पर किसी को भी हायरिंग करने से पहले वी गिव देम अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस along with the application form. उसमें बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइक आपके लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा था, व्हेन यू वर द मोस्ट हैप्पी. सो वी प्रोवाइड दिस क्वेश्चंस इन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड Bengali. Not Bengali, sorry, Bengali we do not provide. Hindi, English, Marathi and Gujarati. So we can also read like what they have written.
एंड अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपका फैमिली का रिलेशनशिप कैसा है, आपकी सबसे बेस्ट पसंदीदा मूवी कौन सी, पसंदीदा बुक कौन सा। सो देन व्हेन दे राइट ओपनली, सो उसमें समझ में आता है कि लाइक वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है या वीक है, देन वी कैन साइंटिफिक मेथड। कोई तो एक कंपनी थी, वहाँ पे तो 20 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म हुआ करते थे, इतना डिटेल आप भरो कि कुछ बचा ही नहीं है। So that's also scientific. Scientific things is not easy. It needs to follow process. It is time consuming. It's also we need to be very careful. I remember one of the well-known company, उसने किसी GM या डायरेक्टर लेवल को इस तरह का क्वेश्चन के फॉर्म्स दे दिए 20 पेज वाले. He refused. He said, "Sorry, boss. I am a director. I'm not going to fill all this form. For me, my time is important." तो ऐसा भी होता है. तो अलग अलग चैलेंज होता है. बट फ्रॉम अ examination perspective, if asked like the utility of scientific selection, so scientific selection involves the process. It's not easy. It takes time. It's time consuming. It involves a lot of money. Yeah, etc. I don't see this thing. Now coming to selection ratio, in any company the selection ratio is high. Selection ratio is like what is the select is in exam, if it all asked like what is the selection ratio. The selection ratio is the ratio of the applicant versus hired or selected. कि आपके किसी जॉब में 200 लोगों ने अप्लाई किया लेकिन पोजीशन एक ही खाली है, उन 200 लोगों में से आपने फाइनली सिलेक्ट किया 5, तो आपका रेशियो क्या है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन रेशियो. सो इट नॉर्मली मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, आई शो यू वन ऑफ माय फिगर. So see, can you see my screen, everyone? Yes. Yes, sir. उसके लिए भेजा 22. ओके, 67 माइनस 45 जो बचे 22 शॉर्टलिस्ट हुए, उनके आगे उनके साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए भेजे गए. उसमें से अप्रूव हुए 9, 9 में से ऑफर दिया 8, 8 में से ऑफर दिया 6. तो मेरा कॉस्ट पर हायर हो गया, परसेंटेज में इतना आ गया. नाउ यू सी 67 एप्लीकेंट में से जो मेरे फाइनल सिलेक्शन है कितना है, 9. सो मेरा रेशियो क्या हो गया, 100:9. कि अगर मेरे पास 100 लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से सिर्फ 9% लोग ही जॉब के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं. गॉट द क्लैरिटी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. 67 में से फाइनल सिलेक्ट कितने हुए, 6. तो मेरा 6. परसेंटेज कितना हो गया, 9. 9. या 67 का 6 is 9%. तो माय application to ratio is only 9. That's still good. Sometimes I have a ratio of 3 also. So ये होता है. Actual, I'm giving you actual scenario. आप लोग कई बार लगता होगा कि यार जॉब के लिए अप्लाई किया, ये तो जवाब देते ही नहीं है, मुझे सिलेक्ट किया ही नहीं. क्यों नहीं किया? Every organization has their own requirement, own need, and on the basis of that, it's selected. So this is selection ratio. Validity, so it's the validity of the device. आपने जो भी सिलेक्शन के लिए डिवाइस यूज किया, चाहे आपने इंटरव्यू यूज किया है, चाहे आपने साइकोमेट्रिक असेसमेंट यूज किया है, एप्लीकेशन ब्लैंक किया, उसकी वैलिडिटी कितना वैलिड है. सो दिस इज द वैलिडिटी. आई डोंट थिंक इट विल कम इन एग्जाम आल्सो.
सो नाउ एग्जाम में नहीं आएगा, इंटरनेशनल डिफरेंस इन सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, आई टेल यू, यू नो, हर एक जगह पर इंडिया वर्सेस वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में सिलेक्शन रेशियो अलग अलग होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, राइट? सो लाइक इंडिया में आज भी बहुत सारी कंपनियां साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज नहीं करती, बट वो करना चाहिए. बट इफ यू गो टू यूएस, चांसेस दैट हाई दैट द परसेंटेज विल बी हायर कि वहां पे इस तरह से यूज होगा. जैसे इसमें लिखा है इन ग्रीस बायोग्राफिकल इन्वेंट्री. सो बायोग्राफिकल इन्वेंट्री इज व्हाट? आपका जो एप्लीकेशन ब्लैंक है जॉब के लिए, जब आप जाते हो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, सो दैट इट इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया. इट इज मोस्ट इंटरव्यू इज मोस्ट पॉपुलर. सेम चीज इन इंडिया आल्सो. टेस्ट वर मोस्ट पॉपुलर इन बेल्जियम. बेल्जियम और स्पेन में टेस्ट पे ज्यादा वो लोग फोकस रखते हैं कि टेस्ट दो तो समझ में आएगा. ओके, सो दिस इज द डिफरेंट प्रैक्टिसेस इज देयर. तो लीगल इश्यूज क्या है सिलेक्शन में? लुक, जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट माइंड, बिकॉज few of you, most of us, you are female, so like you may face this kind of questions कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पहली बात तो बहुत सारे कंपनी जो ओनर्स है जो इंटरव्यू लेते हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड इन हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, what to ask, what not to ask. They do not think about legal aspects. So they may ask like, okay, are you married or unmarried? When are you going to get married? Because they, from the back of mind, they start calculating कि okay, Mariam is unmarried now. She is 25 years. उसके पेरेंट्स ने अगर 2-3 साल में अगर शादी, नेक्स्ट ईयर अगर शादी करने, क्योंकि अभी एज हो गई होगी, मैं उसको हायर तो कर लूंगा, देन शी विल गेट मैरिड, मेरा पूरा हायरिंग बेकार जाएगा. नॉट अ रॉन्ग कैलकुलेशन बट रॉन्ग क्वेश्चन. That's why your job analysis comes to the picture. कि okay, what had been your experience? कि आपने 25 से लेके 30 के बीच में हायर कर लिए, they are not suitable. So straight away you say that कि okay, I need all the applicants above 30 years. I want all the applicants married who have the kids. So आप application blank में पूछ लेते हो कि okay, आप married, unmarried, आपके like how many kids you have. So you need to do a proper job analysis. So there are but when you go to US, you cannot ask whether you are married or unmarried. You cannot ask whether you are going on a maternity break or not. You are not you are not allowed to ask like whether you are a widow or you are a divorcee or you are a still going. So in one of my experience, I hired somebody from a MNC to an MNC. I was heading HR MNC then. We completed the interview. And when we finished, he said, Govind, I'm feeling very happy because so far, what people ask me is like, you know, why did you leave your last job? You got recently married. So how will you continue? You didn't ask all this question. I said, it's not required to me. I need to see whether you fit for my job or not. That is only important. Apparently, we hired her. So that happens. So there are different practices happens across the world. So USA, you can't ask. So see, the legal issue is all about this. So throughout the world is now accepted that organizations should not be discriminatory in their practices. So you must have अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो कहीं पे किसी एक कंपनी में किसी एक कैंडिडेट ने फॉलो अप लिया कि मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया था, मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा क्या हुआ? तो सामने वाला ने जवाब दिया, सॉरी वी डोंट हायर मुस्लिम्स. अच्छा ठीक, यू कांट डू दैट. इंडिया में उसके लिए पेनल्टी नहीं है, बट इफ यू वुड हैव बीन इन नॉर्वे और अमेरिका, कंपनी को बहुत ही बुरी तरह से पेनलाइज किया जाता. हाँ, इंडिया में उसके ब्रांड इमेज के ऊपर फर्क पड़ेगा, बट दैट इज द फैक्ट. देयर आर फ्यू कंपनीज हु डू नॉट वांट टू हायर एनीबॉडी अदर देन देयर ओन कम्युनिटी. लाइक मारवाड़ी से मारवाड़ी चाहिए, गुजराती से गुजराती चाहिए. सो लाइक आई हर्ड वन ऑफ द कंपनी हु प्रोवाइड एम्बुलेंस सर्विसेज, वो उसके गांव से आने वाले, मतलब जिस गांव से वो डायरेक्टर बिलोंग करता है, सो आई थिंक बीवीएस, नॉट रियली, उनको तो बिना इंटरव्यू लिए हायर करा क्योंकि वो उसका बहुत अफेक्शन है, उसको लगता है कि आई एम गिविंग बैक टू माय विलेज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो या सो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन लाइक उनके जेंडर के बारे में पूछना, उनके रेस के बारे में पूछना. सो इट्स नॉट लाइक कि अमेरिका में गुड़ी गुड़ी पिक्चर है, वहां पे भी लाइक हालत इतने खराब थे. इफ यू गो एंड रीड द हिस्ट्री, कि जो ब्लैक लोग थे, जो व्हाइट नहीं थे, उन लोगों को तो एंट्रीज यूनिवर्सिटीज में एंट्रीज भी नहीं था, उनको हायर किया ही नहीं जाता था. तो दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट देयर आल्सो. तो
this mentioned here also. See, most countries offer protection to women and some of protection to blacks. In countries where there is a large black minority, blacks are likely to be offered protection. In countries with few blacks, these protections might not be found in the law. So, selection in the United States, it talks about the same thing. So, in India, we don't have such law where, you know, explicitly told that you cannot ask this kind of questions. But yeah, Constitution, if you see, Constitution Article 15 to Article 29, Article 14 to Article 29 talks about the fundamental rights, where each one of us have rights of equality. So we will not be discriminated against our language, our religion, our region, etc. So India में ऐसे नहीं है, but I doubt a question आएगा भी. So just leave that. Affirmative action is a positive action. Affirmative action means like, you know, आप अगर किसी कंपनी की वेबसाइट में देखोगे तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन रहेगा. सो दे से लाइक वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर. दैट मींस व्हाट, कि मेल हो या फीमेल, हम दोनों का जॉब एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं. हमारे यहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. Affirmative action also means like, you know, you making provision, you take care of the people who need help. So corporate में इसको बोला जाता है diversity inclusion. That's why I said जिसने बुक लिखा he could write, he or she could write much more on that. So diversity inclusion मतलब कंपनीज क्या होती है, इंश्योर करती है कि उनके कंपनी में सब तरह के लोग हो. ये जरूरी भी है फ्रॉम बिजनेस स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव. व्हेन यू स्टडी इन एमबीए, सो यू विल फाइंड मोर. ये बहुत जरूरी होता है. फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में आज की तारीख में 80% एक ही कम्युनिटी के लोग हैं. प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैंने हायरिंग के बारे में डिसीजन नहीं लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, कोई स्पेसिफिक त्योहार आता है, सबके सब छुट्टी मार देते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. See, by using affirmative action, I'll say कि ओके, मैं अभी अपना डाइवर्सिफाई करूंगा, हर एक कम्युनिटी से लोगों को लूंगा, उससे मेरा रिस्क भी कम होता है, उससे मेरा यूनियन भी नहीं होता है. सो अफर्मेटिव एक्शन इज मोर पॉजिटिव एक्शंस, कि जो पास्ट में जो भी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें हुई है वो नहीं हो उसके लिए. सो दिस इज द अफर्मेटिव एक्शन. सो द मेन पर्पस इज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अफर्मेटिव एक्शंस, कि हम डिसेबल को भी हायर करते हैं. हाँ, इंडिया में आप देखोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में आई थिंक फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए 5% कुछ प्रोविजन है. सिमिलरली आप देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए SC ST OBC इन सबको लेकर 55% इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिजर्व है. तो रिजर्व हम लोग को लगता है कि रिजर्वेशन क्यों है, बिकॉज आज भी वो कम्युनिटी डेटा वाइज हो सकता है कि सिटी में वो लोग बहुत आगे डेवलप हो गए, अननेसेसरी फायदा ले रहे हैं. डिबेटेबल कि एक ही फैमिली के वो, उसका बाप भी IAS है, माँ भी IAS IPS है, बेटा भी IAS है, उसका पोता भी IAS है, तो ये पूरा लाइनेज बेनिफिट ले रहा है. लेकिन दैट डजंट हैपन अक्रॉस द कंट्री. आज भी उस कम्युनिटी में लार्जली लोग जो है बहुत पिछड़े हुए हैं. दैट्स व्हाई रिजर्वेशन इज देयर. सो रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन. यूएस में रिजर्वेशन नहीं होता, बट दे कॉल इट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. कुछ ना कुछ प्रोविजन ब्लैक के लिए होता है. सो इसमें अलग अलग कंट्रीज का है, बट नॉट मच टू फोकस ऑन दैट. या नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. वी नो द थिंग्स, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो ट्रेनिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. ओके, विदाउट लुकिंग एट बुक, सिंड्रेला, इफ यू हैव टू शेयर कि कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले कौन कौन सा स्टेप्स यूज करना जरूरी है. कैन यू शेयर समथिंग ऑन दैट? व्हाट डू यू थिंक बिफोर starting a training, what steps involves? Cinderella there? Alka, you may continue if Cinderella is not comfortable. So first thing I know is punctuality and etiquettes. They will train how नहीं, to. sorry Alka, you are going in different mode. Question is different. See, always remember, जब आप आंसर लिखते हो ना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेनिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग? ओके, सो सपोज यू आर अ टीचर. या
टीचिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग। वो हम लोग बाद में देखेंगे ट्रेनिंग के अलग अलग टाइप कौन कौन से। व्हाट यू डू इज अ क्लासरूम ट्रेनिंग। व्हाट इज द स्टेप्स इन ट्रेनिंग? द फर्स्ट स्टेप्स इन ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। किस जो आपने बोला ना वो बाद में आएगा, लेकिन वो आने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा, द स्टेप्स विल बी व्हाट ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। किसको कौन से ट्रेनिंग की जरूरत है, किसके लिए कौन सा मोड इफेक्टिव होगा, वो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना हो गया। So first is the training need identification. Second is defining objective. Third is selecting the right training model. Fourth, imparting training. Fifth, evaluating effectiveness of the training. कि training का effectiveness कैसे था। तो फॉर एग्जाम्पल आप कैसे करते हो कि आपने चलो समझो 10 बच्चों को पढ़ा दिया, आपको मालूम है कि किसको कहाँ पे किस चीज में प्रॉब्लम है, आपने उसको ट्रेन कर दिया। डोंट यू आस्क अ क्रॉस क्वेश्चन, अच्छा है बताओ क्या है करके। Yes, I do. Yeah, that is the training effectiveness measurement. Okay, so this is the steps in the training. Remember the first step is a training need identification. Then you can write in exam कि training need identification में क्या क्या चीज आता है, कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। सबसे पहले मेरा खुद का नीड, मैं खुद बताऊंगा कि मुझे किस ट्रेनिंग की जरूरत है। सेकेंड, मेरा सुपरवाइजर जो मेरा मैनेजर वो बताएगा कि मुझे किस ट्रेनिंग की जरूरत है। थर्ड, परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, बिकॉज परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग इज द डेवलपमेंट एजेंडा। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग खाली इंक्रीमेंट नहीं होता, वहां पे मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ। थर्ड, योर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, जब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट किया जाता है तो समझ में आता है कि ठीक है ये अलग अलग कॉम्पिटेंसी है। आई विल शो यू वन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट आल्सो। I hope everybody has time. Please let me know if you want me to stop, I'll stop. Are we okay to continue or should I stop? No, sir, we can carry on. 9:30, you just give a break of 15 minutes so that we can have some breakfast. Required, because अगर ट्रेनिंग का दूसरा ये भी होता है कि लाइक यू नो अगर आप कंस्टेंटली अगर खाली सुनोगे ना आपका ब्रेन ले नहीं पाएगा। क्या? तो इसलिए एनएमआई एमएस में जब आप एमबीए करते हो ना तो कोई भी सेशन 45 मिनट्स के ऊपर नहीं होता। क्लासरूम में आप 45 मिनट्स हो गया, so there will be a 10-15 minutes break and then again starts. I'll just share one thing with you. आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes. So see, ये मेरे बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी दो होता है, एक बिहेवियरल होता है, दूसरा होता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब जो आपके जॉब से रिलेटेड है, बिहेवियरल मतलब बिहेवियर रिलेटेड। सो मेरे कोर कॉम्पिटेंसीज है जो मुझे हर एक में चाहिए, पीओन से लेके मुझे डायरेक्टर में हर एक में चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, अडेप्टेबिलिटी, प्रोसेस ओरिएंटेशन। वैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है मैनेजरियल में। सो कोर में मेरे इतने हैं जो मुझे सब में चाहिए। मैनेजरियल जैसे मैनेजर में वो चाहिए डेवलपिंग टीम मेंबर्स, एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कमर्शियल एक्यूमेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर आता है लीडरशिप, जो लीडर है, जो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या डिसीजन मेकर से मेरे 5-6 जो की लोग हैं, 8 लोग कंपनी में, मतलब डिपेंड कंपनी साइज में, तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। तो मैंने फिर आगे क्या किया है, हर एक को बताया कि लाइक अकाउंटेबिलिटी के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट मुझे चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रिस्पेक्टिंग डाटा एंड वैल्यू चाहिए। तो लेवल 1 में कौन है, लेवल 2 में कौन है, लेवल 3 में क्या है, सॉरी कौन नहीं क्या है, लेवल 4 में क्या है, लेवल 5 में क्या होगा। तो जब मैं उसका इंटरव्यू लूंगा तो मैं इसके बेस के ऊपर लूंगा। तो जब मैं समझो अभी कोई पर्सन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, तो सॉरी सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो मैंने डिफाइन किया कि उसमें कम से कम लेवल 3 की कॉम्पिटेंसी चाहिए। कोई मैनेजर लेवल पे मुझे लेवल 4 पे चाहिए उसका कॉम्पिटेंसी। कोई एचओडी लेवल पे, लीडरशिप रोल पे मुझे उसमें कम से कम 5 लेवल का चाहिए। तो मैं उसको असेस करूंगा कि लाइक अकाउंटेबिलिटी के अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप में लेवल 5 में क्या आता है, एक्ट एज अ रोल मॉडल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग ओनरशिप एंड कमिटमेंट टू एडिंग वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि लाइक वो वेट नहीं करता कि तुम मुझे काम दो,
मैं उसका जवाब दूंगा कि जितना बोला है उतना ही काम करूंगा, वो काम मैं पूरा करूंगा। नहीं, वो तो लेवल 2 पे आ गया। यहाँ पे उसकी वेट ही नहीं करता, रोल मॉडल करता है, लोगों को बोलता है कि देखो इस तरह से हमें काम करना चाहिए, ये हमारा ये होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो मैं उसके बेस के ऊपर बताऊंगा भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप का लेवल 5 चाहिए, लेकिन तुम लेवल 3 पे हो, तुम्हें इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो उसके तुम्हें कोचिंग लेना होगा, मेंटरिंग लेना होगा, कौन से अलग अलग मेथड है उसके हिसाब से करना होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, हाउ डू यू डू दिस। So steps involving training, need assessment, defining objective, then designing the training and implementing training. Yeah. तो आप उसमें से पढ़ोगे, आपको पूरा मिलेगा। तो ट्रेनिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको नीड असेस, जैसे मैंने बताया, नीड असेस करने का मेथड क्या है? आप या तो लोगों से डायरेक्टली पूछ सकते हो, आप उनके मैनेजर से पूछ सकते हो, आप एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट फॉर्म बना सकते हो, उसके बेसिस के ऊपर लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए बोलोगे, तब लोग फॉर्म फिल करेंगे एंड यू कैन डिटरमाइन कि ओके इसको इस ट्रेनिंग की जरूरत है। सेकंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसको बहुत जरूरी है क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया, आप ट्रेनिंग क्यों देना चाहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। देन यू डिजाइन द प्रोग्राम, अब इसको कैसे डिजाइन करना है। देन फोर्थ द डिलीवरी एंड फिफ्थ इज द इवैल्यूएशन। सो जस्ट टू रिकैप, Cinderella, what are the steps in the training? Is Cinderella there? She is not there. Shivani has spoken. Alka has spoken. Mariam? Okay. So what are the steps involved in the training? May I? Just give me a minute. No. Okay. So is the poll visible to all each one of you? यहाँ पे सबको पोल दिख रहा है? Yes, sir. So can you vote? Only one person has voted. बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी किसी को पोल विजिबल नहीं हो रहा है? Okay, 2 people have voted. Very good. I need to see who voted. Okay. Next. दो सेकंड लगता है, जस्ट वोट फटाफट. It won't take much time. Out of 5, only 2 people have voted so far.
Sir, it was visible earlier. Now it is not visible. रिजल्ट सबको विजिबल हो रहा है. So see, I think Alka, you voted first, right? Yes, sir. So can you tell what are the steps involved in the training? So पोल में जितने भी ऑप्शंस दिए थे वो सारे इंक्लूडेड है, ऑल 5 steps. एग्जैक्टली और उसको आपको स्टेप वाइज करना है. तो सबसे पहले ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन होता है. उसके बाद ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है. फिर थर्ड उसका डिजाइन करना होता है. फिर इवैल्यूएट करना होता है कि कितना इफेक्टिव रहा. ओके, तो इसमें से हर एक चीज एप्लीकेबल है. सो यू कैन राइट एग्जांपल. सो नीड असेसमेंट, हाउ डू यू डू द नीड असेसमेंट एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल. पूरे कंपनी में मुझे कौन बल्कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस के ऊपर. एट जॉब लेवल हो सकता है कि किसी जॉब में खाली स्पेसिफिक स्किल की जरूरत है. फॉर एग्जांपल गोविंद के रोल में डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोविंद को एक्सेल नहीं आता है, बेसिक आता है बट एडवांस नहीं आता. इन दैट केस एट जॉब लेवल डिफाइड की ओके दिस पर्सन नीड डेटा एनालिसिस का ट्रेनिंग जरूरत है. सो अलका के लेवल के ऊपर ओके, तो अलका इज गुड एट हायरिंग पीपल एट जूनियर लेवल, बट व्हेन इट कम्स टू हायरिंग समबडी एट जीएम लेवल, so she still needs training to do. So what to do? So she should be sent for the competency based interview, that is the job level. And so not only Alka, so at job level for the same job many people. क्या, जैसे कि समझो कोई कंपनी ने कोई नया मशीन इंट्रोड्यूस कर दिया, उस मशीन को ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग होता है जॉब लेवल. पर्सन लेवल उसे नॉलेज के बेस के ऊपर, स्किल के बेस के ऊपर, उसके एटीट्यूड के बेस के ऊपर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज डन. या सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब ट्रेनिंग क्यों करना है, उसके पीछे रीजन क्या है. इज प्योरली बेस्ड ऑन द direction. So like purely based on the what we want to get out of the training. Why do we want to get the training? Yeah. So समझो कि LIC में 90s में सबके सब टाइप राइटर यूज करते थे. अब 91 में 90s में राजीव गांधी ने बोला कि अब सब जगह कंप्यूटर होगा और LIC में भी कंप्यूटर आएगा. So now the direction is like we want to become a move from the typewriter to a computer kind of organization. That's the direction. So कुछ कंपनी ने, सपोज आप किसी कंपनी के पार्ट हो, कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें एक प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी बनना है, न कि पर्सन ओरिएंटेड. तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एसओपी सर्टिफिकेशन ले जाएंगे. तो सबको एसओपी कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसकी ट्रेनिंग. दैट इज डायरेक्शन. सो इवैल्यूएशन, इज लाइक वो ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव था उसके लिए. ट्रेनिंग डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हर एक का लर्निंग स्टाइल क्या है. फॉर एग्जांपल मैं बार बार बोलता हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग में सक्सेस रेट 10% के ऊपर नहीं है. तो व्हाई सो? In distance learning, the relation between the trainer and trainees are not the way it is in physical training. राइट. सो डिस्टेंस लर्निंग में 10% सक्सेस रेट क्यों है? बिकॉज पहली बात तो ब्लैंकेट यूनिवर्सिटी ने सबको बुक दे दी है और बोला कि ठीक है तुम पढ़ लो और एग्जाम दे दो. कोई क्लासेस नहीं हो रहे, कोई सेशन नहीं हो रहे. लेकिन मेरा हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल मरियम को जब तक कोई सामने फेस टू फेस उसको एक्सप्लेन नहीं करता, वो बुक से खाली पढ़ के समझ में नहीं आता. सिंड्रेला का स्टाइल ऐसा है कि वो खाली कोई टेक्स्ट रीड करेगा नहीं, जब तक वो उसको एग्जाम्पल नहीं देगा, उसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट होगा नहीं होगा. शिवानी का ऐसा है कि जब तक उसको कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा तब तक वो पढ़ ही नहीं पाएगी. अलका का पर्सनालिटी लर्निंग स्टाइल ऐसा है कि
जब तक वो खुद कुछ करेगी नहीं, जब तक वो बैठ के जॉब इवेल्युएट नहीं करेगी, जब तक वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेगी नहीं, जब तक वो कॉम्पिटेंसी को देखेगी, तब तक समझ में नहीं आएगा। सो बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसको बोला जाता है। ज्योति का स्टाइल ऐसा है कि कि उसे उससे अकेला छोड़ दो, उसको खाली तुम रीडिंग मटेरियल दे दो और वो आप पढ़ लेगी। तो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो डिस्टेंस लर्निंग में चूंकि ये होता नहीं है, तो इसकी वजह से बड़ा challenge है। नहीं होता 10+ लोगों तो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग स्टाइल। हर एक लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो सिमिलरली जब आप ट्रेनिंग डिजाइन करते हो तो आपको बहुत जानना जरूरी है कि हर एक का लर्निंग स्टाइल क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट इज द training characteristics. See, वही चीज यहाँ पे आया हुआ है। When several trainees attend the same training program, all of them do not gain equal benefit from it. Some trainees learn and gain considerably, while others may not learn much of it. There are various characteristics of the trainee that affects the extent to which they benefit from the training. तो वो ट्रेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है एबिलिटी, तो लर्निंग एबिलिटी। Each trainee differs from each other, so it depends like how much they can gain from the training. Yeah. Second is attitude. उसको रियली ट्रेनिंग करने की एटीट्यूड है क्या? आई हैड अ टफ टाइम, आई हैड ट्रेन a number of leaders and 2 to 3 of them clearly said I don't have time and I don't want to do, I don't think this is going to make any difference in my life. Attitude, that's a problem. So few have the positive outlook. आज हम लोग 160 people are there in the group, why only 5 people have come? It's attitude. ये 5 है तो पढ़ना ही, चलो कुछ भी हो जाए, पास तो कैसे भी हो ही जाएगा बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए भी, बट लेट्स लर्न। सो दैट इज द एटीट्यूड। मोटिवेशन, व्हाट इज द मोटिवेशन, व्हाई दे वांट टू अटेंड द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग करने के बाद क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मुझे न्यू रोल्स मिलेंगे, क्या मुझे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, इससे मेरे लाइफ में क्या फायदा होगा? वी ट्रेंड अराउंड 230 पीपल, लास्ट के बैच में 15-20 लोगों ने बोल दिया कि हमें ट्रेनिंग करना ही नहीं है। वो कोई नहीं, जो हम जो काम का हमें वही करना है, आगे बढ़ना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है, बस ठीक है। लर्निंग स्टाइल विच वी हैव स्पोकन। तो डिजाइन फैक्टर्स, सो पहला फैक्टर्स कौन कौन सा, रिमेंबर ए हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेनिंग डिजाइन में कौन कौन से फैक्टर है दैट अफेक्ट्स? फर्स्ट इज अ ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंडर में एबिलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल, ये आ गया। सेकंड इज डिजाइन फैक्टर, हमने पहले बताया। सो डिजाइन फैक्टर में क्या क्या है? एक फीडबैक, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फीडबैक नहीं देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आगे इंप्रूव करना कैसे। अगेन आई एम गिविंग यू बैक एग्जांपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी वर्सेस एनएमआईएमएस। मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको क्लासरूम में पढ़ा दिया जाएगा, आप पढ़ो, जाओ, एग्जाम दो, बात खत्म हो गई, इवन इन फुल टाइम। बट एनएमआईएमएस में जब आप एमबीए वहां से करते हो, भाई इट इज अ डिफरेंट बी स्कूल। आफ्टर ईच सेशन, हर एक क्लास खत्म होने के बाद, यू आर सपोज टू प्रोवाइड फीडबैक। आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपको फीडबैक देना होता है। तो वेदर वो कंटेंट डिलीवरी इफेक्टिव था या नहीं था, वेदर जो सब्जेक्ट समझाया वो क्लैरिटी था कि नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था कि नहीं था। सो ऑल दिस एस्पेक्ट एग्जिस्ट। सिमिलरली जब आप ट्रेनिंग देते हो, आप में से किसी को ट्रेनर बनना होगा, टीचर इज ऑल्सो ट्रेनर, आपको कभी कोच बनना होगा, या आपकी कंपनी में आप एचआर हो, आपको ट्रेनिंग देना होगा, तो देन फीडबैक में ये सब होना जरूरी है कि उसका कंटेंट कितना इफेक्टिव था, ड्यूरेशन कितना इफेक्टिव था, एंगेजिंग था कि नहीं, खाली गोविंद बड़बड़ कर रहा है, कोई पूछा ही नहीं कि अलका को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मरियम को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेदर वो एंगेजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलग अलग टूल्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि खाली पीपीटी पढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि खाली पीपीटी रन हो रहा है और वी आर नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी डोंट रीड द पीपीटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली मैं बुक रीड करूंगा, then probably you will say, तो हम लोग भी कर सकते हैं, by the hell we are wasting our time, our Sunday morning for this. So how do we do a feedback? It is mentioned here. So trainer will give a kind of task and then you perform the task. So that is the instant feedback. भले सामने वाले फीडबैक लेके आपको समझ में आ गया कि मेरा ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव था या नहीं था। सेकेंड इज
हम सामने से ट्रेनिंग को फीडबैक देते हैं कि भाई ये तुमने अच्छा किया, ये बेटर होना चाहिए था। तो आई रिमेम्बर NMIMS में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सेशन, the professor asked me to do a demo, do a role play. Role play is also one of the way of training. Okay, you have studied all this thing, I have taught all you this thing, now you demonstrate कि तुमने इसे क्या समझे। मेरा एक फ्रेंड था राजीव विकास, अच्छा फ्रेंड है, अभी भी है, था नहीं अभी भी है। सो मैं उसका बॉस बना, वो मेरा टीम मेंबर बना, आया, उसने बोला कि हाँ ये मेरे परफॉर्मेंस एरिया, हमने KPI भी डिस्कस किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद में, जॉब इवैल्यूएशन के बाद में जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हमने बात की, तो आई वेंट सो मच इनटू द रोल कि मैंने उसको झाड़ दिया वहां पर। एंड द प्रोफेसर स्टार्टेड, एंड द मोमेंट वी क्लोज द रोल प्ले, Simi Vij ma'am was our professor, one of the finest professor I have seen. She gave feedback, Govind, this is not the way you should take a performance review. तुम तो उसके ऊपर ऐसे चढ़ गए थे, like you are not making him comfortable. So that's the feedback. आप ट्रेनिंग को instantly feedback देते हैं. You can write this kind of example in paper also. Okay, so these are the things. So overlearning, में जितना आप लर्न कर रहे हो, उससे जितना जरूरत है उससे ज्यादा आप लर्न कर लेते हो। प्रॉब्लम भी है और नहीं भी है। तभी हम बोलते हैं कि कोई पर्सन जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। व्हाई डू वी से सो? बिकॉज वो पर्सन के पास इतनी क्वालिफिकेशन होती है, मुझे लगता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आया जॉब एप्लीकेशंस के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जॉब डेटा एंट्री का, सॉरी आई दिस जॉब इज नॉट फॉर इट, ओवर क्वालिफिकेशन। सिमिलरली ओवर लर्निंग, so overlearning is like जितना उसको पढ़ा है वो अपना माइंड यूज, अपना ब्रेन यूज करके, अपनी कॉग्निटिव स्किल को यूज करके उसके एक स्टेप आगे चला जाता है। तो वट एवर हैज बीन टॉट, सो वर्ड में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ओवर लर्निंग मीन्स वट एवर द ट्रेनर हैज टॉट टू द ट्रेनी, टू द लर्नर, when the person demonstrate the knowledge more than whatever has been taught, that is called overlearning. So this kind of people, like, they can think very well, they are a very good thinker. Yeah, so why this is important, what advantage it has? Learner becomes stronger. Second, the person can work in more effective manner. Third, so the person develop better understanding. Fourth, so the when the learners face a kind of situation, critical situation, on the basis of his overlearning, he can overcome that easily. So repetition. So what is the quality of a good training program? Now we are moving to this thing. What is the quality of the good training program, or what makes a training program effective? The first is repetition. आप एक बार लर्न करो, आप भूल जाओगे। नॉर्मली बोला जाता है कि आपने जो लर्न किया है, अगर आप उसको 24 आवर्स के अंदर वापस रिवाइज करते हो, तो चांसेस है कि आपके मेमोरी में ज्यादा टाइम रहेगा। फॉर एग्जांपल, व्हाटएवर वी हैव लर्न नाउ, इफ यू रिपीट दैट विद इन 24 आवर्स, तो चांसेस है कि आपको उसमें से आपके मेमोरी में ज्यादा फिक्स हो जाएगा। बट इफ यू डोंट डू 95% थिंग, यू विल फॉरगेट, दैट गोइंग टू हैपन। सो दैट्स व्हाई रिपीटेशन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। या so that's why as a trainer, when they impart the training, they also do a follow-up session. Second is practice. If you don't practice, you are going to forget, and that has been proved again and again by various study, and that's very true. For example, if you learn a psychological practical in a lab for 6 months, you do nothing. If you go again in a lab and if you have to repeat the practical, you can't. Practical you have to repeat again and again. So like this Driscoll, Willis and Cooper, they said that overlearning and performance through task, तो उन्होंने मेटा एनालिसिस किया हुआ था, तो जिसमें सिमिलर स्टडीज को उन्होंने स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया था, स्टैटिस्टिक्स टूल यूज करके एनालाइज किया था। सो ओवरलर्निंग का जो इफेक्ट है बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता। सी सीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग सेशन, सो एवरी ट्रेनिंग हैज टू बी प्लान्ड इन अ वेरी वेल, तो इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बार बार आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज मोर अबाउट एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, क्योंकि जब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कि पहले लोग रिक्रूट होंगे, सिलेक्ट होंगे, उनका ट्रेनिंग होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, फिर उससे पहले आपको जॉब एनालिसिस करना जरूरी है, उससे पहले आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना जरूरी है, बिकॉज वो सीक्वेंसिंग में अगर नहीं होगा ना तो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, आप उसको कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, आप क्या पढ़ रहे हो उसमें बहुत बहुत डिफिकल्ट है। Okay, you read on this whole method distribution training, not this thing. Work environment also play important role. अगर वो supportive नहीं है तो नहीं होगा। वर्क एनवायरनमेंट क्या क्या होगा कि मैनेजमेंट कितना सपोर्ट करता है उस ट्रेनिंग के लिए, अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है तो ट्रेनिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। सुपरवाइजर या मैनेजर नहीं करता है, नहीं होगा। एम्प्लॉइज सपोर्ट नहीं करता है, नहीं होगा। सो अगेन टेक अलका एग्जांपल ऑफ योर क्लास, ठीक है। सो योर स्टूडेंट, यू आर टीचिंग देम, बट स्टूडेंट डजंट वांट टू लर्न, कैसे होगा? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ आवर ग्रुप। कुछ स्टूडेंट विदाउट टेकिंग अ नेम, इवन आई डोंट रिमेंबर द नेम, लाइक एक ही चीज के ऊपर कि लाइक बुक हमें लेट मिला, हमें तो हुआ ही नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम तो पोस्टपोन होना ही चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट, बाबर हम लोग बोल रहे हैं कि वी विल हैव अ ऑनलाइन डिस्कशन, सो लेट्स कम टुगेदर, वी विल अंडरस्टैंड टॉपिक। नहीं, आप मुझे बताओ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे खाली वही पढ़ना है। सो दिस इज द सपोर्ट और द एटीट्यूड के साथ में सपोर्ट भी, लाइक वो सपोर्ट करना ही नहीं है, होगा ही नहीं तो कभी नहीं होगा। तो this is all about the training part first. So how does the work environment influence the transfer of training? If the work environment is not supportive, if the manager is not supportive, if the manager is not receptive, if the supervisor is not receptive, management is not supportive, not going to happen. Management support is very much required. Similarly, manager support is required. Employees' attitude and support is required. So the work environment influences the transfer of training. If they have the attitude of this, then the training becomes effective. So what are the different design factors that affect the transfer of training? One is attitude. Second, design of the training. Yeah. Third, the organization. Distinguish between high fidelity and low fidelity simulations. We have not touched on this topic. Whole training, when you give the training on the complete aspect of this part, you do not do it in one go, but you divide the training into different module and give in the part basis training. Yeah. So what is involved in the need assessment stage of training? What is involved in need assessment is basically understanding the objective. Why do you want to do the training? Second, whether the training is required at the organizational level or department level or the individual level. So this is all involved in the need assessment. And also, like, what will be the effective mode of training? What is the learning style of the learner? So this all involves in the need assessment of the training. 15 minutes break, we will connect back at 10 o'clock, and in half an hour we will complete the training second part. So thus we will complete industrial psychology, and then evening we can think about statistics. Is it okay, or you want to conclude right now only, so no need to do it further? No, sir. Can we have a break so that we will have some tea? Okay, so 15 minutes break and 10 o'clock we will Yes, connect sir. back. Definitely. Okay, thank you.